Good morning, our respected parents and my dear students. So, dear students, before starting our class, I want to share a positive thought. So, today thought is life is a one-time offer. Use it well. It's mean कि life है वो सिर्फ हमें एक chance देती है बेटा, एक offer देती है, उसको अच्छे से use करो. So, dear students, अपना time waste मत करो, उसका सदुपयोग करो. अपना homework है वो time पर करो और complete करो. Okay, so dear students, let's start. So in previous class I taught you chapter 4 that name was Kabuli Wala. So today I will tell you short summary of this chapter so that you can understand easily. So listen carefully. Okay students, so the story the Kabuli Wala is narrated by the father of a 5 years old Mini. Okay, the talkative and innocent Mini and Rahmat is Kabuliwala. Okay, a hawker of dry foods from Kabul are the central characters of the story. One morning, Mini saw Kabuliwala through her window and called out to him. He was a tall dressman with turban on his head and a bag slung over his shoulder. Okay. As soon as the Kabuliwala drove close the house, Mini ran and vanished inside. Her father bought some dry fruits and chatted with him and came to know of him and his family at Kabul. Then he called Mini and introduced her to Rahmat, the Kabuliwala, so that she would shed her fear of the Kabuliwala. Rahmat gave Mini some dry fruits from his bag. Okay, some dry fruits from his bag. Later, Mini's father found that his daughter and Kabuliwala had struck up a happy relationship, and the two of them met practically every day. The Kabuliwala was a patient listener to Mini's tittle tattle and also gave her and loads of nuts and raisins. The Kabuliwala entertained Mini with stories of his motherland. Mini's mother was against the growing companionship between her daughter and the Kabuliwala, and fear he would kidnap Mini one day and sell her off as a slave. Okay, so all of stern disaster struck the Kabuli. So he was arrested and sentenced to several years of incarceration for stabbing one of his customers who owed him money. After his release from the jail, the Kabuliwala went to Mini's house to meet her. However, he found that Mini's had grown up and it was her wedding day. Mini's father was not happy to see the Kabuliwala on that day and considered it inauspicious to let him see Mini. He persuaded the Kabuliwala to go away. Before going away, the Kabuliwala left a few grapes and raisins for Mini. He then showed Mini's father a dirty piece of paper with a charcoal print of tiny hand. It was his daughter's. Filled with pity for the Kabuliwala, Mini's father called Mini. When the Kabuliwala saw Mini in her bridal dress, she was surprised to find a young woman he could not recognize. Mini was embarrassed when she thought of their long forgotten companionship and sighed away. The Kabuliwala found it extremely difficult to reconcile with the reality. Seeing the predicament of the Kabuliwala, Mini's father offered him enough money to return Kabul to join up with his daughter, even though he had to cut down some of the wedding celebrations. He saw contented with his humanistic gesture to a distressed fate. So, dear students, now I explain it. Okay. सो बेटा चैप्टर द काबुलीवाला ये किसने नरेट किया है? फादर ने. ओके, जिसकी 5 ईयर्स की बेटी है जिसका नाम क्या है? मीनी. ओके, इसमें मीनी है जो बहुत ही टॉकेटिव, इसमें जो बहुत ही उसको अच्छा लगता है पूरे दिन बातें करना. ओके, बट वो इनोसेंट है. और रहमत है जिसका नाम क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? काबुली वाला. ओके, जो कोलकाता की गलियों में आता है क्या बेचने? ड्राई फ्रूट्स.
ओके। सो एक दिन मीनी ने क्या देखा, काबुली वाले को विंडो से देखा और उसको आवाज़ लगाई, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। अब काबुली वाले कैसे कि बिल्कुल ही ढीले ढाले कपड़े, मैले कचूले पहने हुआ था और उसके सिर पर पगड़ी थी और कंधे पर एक बैग था। जैसे ही काबुली वाला उसके पास आया, जैसे ही उसके ना काबुली वाले उसके घर के पास आने लगा, तो मीनी अंदर दौड़ गई और कहीं जाकर छुप गई। क्यों छुप गई? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि जो काबुली वाला का बैग है उसमें ऐसा लगता है कि उसके जैसे ही, मीनी के जैसे ही बच्चे हैं। किसके बैग में? काबुली वाले के में। ओके। जब काबुली वाला मीनी के घर पर आता है तो उसका जो फादर है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदता है काबुली वाले से और उसके बारे में जानकारी लेता है। इट्स मीन्स उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में जानकारी लेता है। अब उसका जो फादर है, मीनी का फादर, वो उसका डर भगाने के लिए, कि इसका मीनी का डर भगाने के लिए वो मीनी को बुलाता है। कहाँ पर? काबुली वाले के पास वो बुलाता है। तो वो क्या होता है, वो डरी हुई अपने पापा के पीछे, जो फादर के पीछे खड़ी हो जाती है और वो डरती रहती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके बैग में मेरे जैसे ही बच्चे हैं। अब काबुली वाला है वो मीनी को क्या देता है? कुछ ग्रेप्स देता है, रेजिन देता है, ओके, किशमिश देता है। इससे क्या होता है कि वो दोनों क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। एक दिन क्या देखता है उसका फादर कि वो दोनों बैठे हैं एक जगह और एक दूसरे की बातें भी सुन रहे हैं, ओके, और अपने जो जोक्स हैं शेयर कर रहे हैं अपने एक दूसरे को, ओके। सो मीनी की मदर है जो, वो काबुली वाले के लिए बहुत ही करती है क्योंकि उसको शक होता है कि ये जो काबुली वाला है ये बहुत ही अच्छा आदमी नहीं है। उसको शक रहता है कि ये मेरी बेटी को किडनैप कर लेगा, इसलिए वो हमेशा उस पर शक करती रहती है, ओके। अचानक ही मीनी का फादर देखता है, एक दिन क्या होता है कि मीनी का फादर है नोवेल, अपने जो राइटर था वो लिखता रहता अपने रूम में, तो अचानक वो देखता है कि दो पुलिस वाले काबुली वाले को पकड़कर ले जा रहे हैं और काबुली वाले के कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ है और पुलिस वाले के पास एक नाइफ है जो खून से सना हुआ है। उसको उसके फादर ने सारी तहकीकात पूछने के बाद उसको क्या पता चलता है कि जो काबुली वाले हैं उसने क्या कर दिया है, किसी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। किसकी? नेबर की। जिसे नेबर कौन था बेटा? जिसमें देखो वो एक रामपुरी शोर लेता है काबुली वाले से, रामपुरी चादर, और उसके पैसे कुछ पेंडिंग रह जाते हैं, ओके। वो काबुली वाले को देने से मना कर देता है। अब उन दोनों में आर्गूमेंट्स हो जाती है और इस आर्गूमेंट के दौरान काबुली वाले को गुस्सा आ जाता है और वो उसको चाकू घोंप कर मार देता है, ओके। सो इसमें क्या है कि दोनों के बहस के कारण, ओके, वो उसका खून कर देता है। अब पुलिस उनको उसको ले जाती काबुली वाले को और उसको काफ़ी साल तक जेल होती है, ओके, काफ़ी सालों की उसको जेल होती है। उसके दौरान सभी उसको बोलने लग गए। जो मीनी थी वो भी बड़ी हो गई, उसकी शादी भी फिक्स हो गई। अब वो बहुत सालों बाद जब रिलीव होता है, जब जेल से छुटकर आता है, तो वो मीनी से मिलने आता है और जब वो आता है तो उसके फादर, जो मीनी का फादर है ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस ओकेजन पर, मतलब देखो शादी हो रही है मीनी की, इस ओकेजन पर ही काबुली वाला आया है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करता है कि काबुली वाले को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो उसको दुख होता है, वो एक बार मिलना चाहता है मीनी से, बट उसका फादर कहता है कि अभी शादी का माहौल चल रहा है इसलिए आज आप चले जाओ। अब काबुली वाला क्या करता है कि अपनी जेब से, अंदर की जेब से एक पेज निकालता है जो बहुत ही अनफोल्डेड, मतलब उसको अनफोल्ड करता है, जो बहुत फोल्ड किया हुआ था बहुत बार, तो उसको अनफोल्ड करता है। तो वो मिनी का फादर क्या देखता है कि उस पर चारकोल, मतलब इट्स मीन कि ऐसा लगता था कि छोटे बच्चे की प्रिंट, मतलब उससे उस पर लिया हो, ओके। सो वह देखकर मिनी का फादर क्या होता है, उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और काबुली वाला कहता है कि मैं सिर्फ आपकी बेटी से इसलिए मिलता हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी की याद आती है। इट्स मीन स्टूडेंट, जो काबुली वाला है ना, उसके जो जो वहाँ पर वह रहता था, काबुली वाले का जो देश था, वहाँ पर उसकी एक बेटी थी जिसको वो हमेशा याद करता है, ओके। और उसको याद करते हुए वह रोजाना मीनी से मिलने आता है। अब मीनी के फादर को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत मीनी को बाहर बुलाता है। अंदर थी ना ब्राइडल ड्रेस में, तो जब मीनी बाहर आती है ब्राइडल ड्रेस में तो बहुत ही शर्म महसूस करती है क्योंकि बहुत साल हो गए थे मिले हुए काबुली वाले से। अब उसको लज्जा आने लगी थी। अब क्या करते हैं कि जब काबुली वाले को उसमें को देखता है ना ब्राइडल ड्रेस में, तो बहुत ही सरप्राइज रह जाता है कि मीनी कितनी बड़ी हो गई है और उसको अपनी बेटी की भी याद आती है कि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी।
क्योंकि बहुत दिनों से बाद काबुली वाले से मिलती है तो वो क्या होती है, शर्माती है। तो उसके फादर क्या कहता है, अब जब वो वापस चली जाती है, तुरंत मीनी है वो वापस चली जाती है, तब उसका फादर बोलता है कि आप कुछ पैसे ले लो और अपने देश चले जाओ। तो उसके फादर क्या करता है कि उसको पैसे दे देता है और वह उसको कहता है कि आप अपनी बेटी के पास चले जाओ, आप अपने देश चले जाओ। हालांकि इससे क्या होता है, मिनी के फादर ने जो भी डेकोरेशन की हुई थी, मतलब उसका जो उसको लग रहा था कि मुझे ये डेकोरेशन करनी है, ये करूँगा शादी में, तो उसको वहाँ से कट करना पड़ा, कुछ डेकोरेशन कट करनी पड़ी, क्योंकि पैसे किसको पास चले गए थे, काबुली वाले के पास। ओके, क्योंकि उसने मिनी के फादर ने काबुली वाले को पैसे दे दिए थे, अब कुछ इतने पैसे नहीं थे कि वो सारी डेकोरेशन कर सके। सो लास्ट में क्या होता है बेटा कि वह मानवतावादी के लिए बहुत खुश होता है, संतुष्ट था। कौन, मिनी का फादर, क्योंकि वो मानता था कि उसने जो किया है वो इस डेकोरेशन से भी ज़्यादा कुछ है, और अंत में उसे मानवता के लिए कुछ अच्छा किया है, उसको ऐसा हमेशा लगता रहेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन दिस short story. Okay, thank you so much.